Yes, good morning, students. Today in this lecture we will discuss some problems of Boolean algebra. Boolean algebra is used for providing solution to our digital circuits equation, logic expressions. So whatever logical expression we have, if we use Boolean algebra, the number of gates will be reduced. The number of the gates in the circuit will be reduced. So now suppose we have been given in problem in exam that prove x plus yz is equal to x plus y एंड x प्लस z. एग्जाम में हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी कि बूलियन अलजेब्रा से हमें इनको प्रूव करना है. तो वी हैव वन इक्वेशन इन राइट हैंड साइड एंड वन लेफ्ट हैंड साइड. वी हैव टू प्रूव देम इक्वल. सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, जो भी इक्वेशन आपको बड़ी थोड़ी दिख रही है आप उस साइड से स्टार्ट करें. जैसे यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ 4 है वेरिएबल्स एक तरह से, और यहाँ पे वी हैव टू इक्वेशंस. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड. व्हाट वी विल डू, first of all we will open this equation. We will multiply x with x, then x with z, y with x and y with z. Simple multiplication that we used to do in your arithmetic, the same we will do here. So x x z plus y x, or we can say x y the same, and y z, right? So what we will do now, we will apply Boolean algebra rules. As per Boolean algebra rules, we know x dot x is equal to x. So this rule we will apply in this equation number 1. So we will put here x dot x means we will put here as x, right? Plus xz plus xy plus yz. Now in these two equations we can take x common. So what will be inside the bracket? It will be 1 plus z plus x y plus y z. Now again, as per Boolean expression we know 1 plus z, that is equal to 1. So we will put this value over here. So it will be x dot 1 plus xy plus yz. So it will become x plus xy plus yz. From these two equations again I am taking x as common. It will be x 1 plus y plus yz. 1 plus y again, what will be its value? Its value will be again as per Boolean expression, it will be 1. Boolean laws we will apply here, so it will become, we will put here 1. So it will be x dot 1 plus y z. What will be this? This will be x multiplied with 1 will be x plus y z. So this is the equation we have solved. इसके बाद ही आगे solve नहीं हो रही है. So we are able to see here that in the question we were having right hand side was x plus yz, and the same we are getting here x plus yz. So I can say that I have taken the equation from right hand side and और उसको हमने solve किया step by step, और वो हमारी left hand side के equal आ गई. So we can say here that left hand side has been proved as right hand side. In this way the questions will be given to us कि आपको बूलियन अलजेब्रा से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. आपको बूलियन लॉज सिंपल उसमें अप्लाई करते चले जाने हैं, और जितना वो सॉल्व होगा उसको सॉल्व कर देना है. ठीक है. सो इन दिस वे वी विल बी हैविंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम, द सोल्व द बूलियन एक्सप्रेशंस, राइट. सो दिस वाज वन. नाउ विल ट्राई टू डू सेकेंड प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल इट इज प्रूव x y plus x bar z plus y z is equal to x y plus x bar z. Now we will try to see here number of terms are there more on the left hand side. Left hand side पे आपकी 3 terms है, इस साइड 2 terms है, तो हम जहाँ terms ज्यादा है वहीं से start करेंगे. So we will start from left hand side x y plus x bar z plus y z. Now we know one Boolean rule, that is x plus x bar is equal to 1. We all know x plus x bar हमारा 1 के बराबर होता है. ठीक है. अब हम ये वैल्यू क्या करते हैं, मतलब अगर हम किसी भी यहाँ पे टर्म को 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, सपोज
जहां पे x नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x है, लेकिन इनमें x नहीं है y z में, तो मैं क्या करूंगी इसमें, अगर मैं यहाँ पे लिखूं y z मल्टीप्लाइड विद 1, इट विल रिमेन एज y z, और इस 1 की जगह अगर मैं x प्लस एक्स बार डाल दूं, ठीक है, तो इट विल अगेन द मीनिंग विल रिमेन सेम, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, वाई जेड की टर्म में x प्लस एक्स बार को ऐड करना चाह रही हूँ, ताकि मेरी इक्वेशन जो है वो हमारी सॉल्व हो जाए। कई बार हमें टर्म्स को इस तरह से ऐड भी करना पड़ सकता है, अगर हमारा सॉल्यूशन ना हो तो हमें इस तरह से ऐड करना पड़ सकता है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ किया वाई जेड के साथ मैंने x प्लस एक्स बार लिखा, इसका मतलब 1 है, तो वाई जेड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इट विल रिमेन एज इट इज, इट्स वैल्यू इज 1। सो इक्वेशन हमारी ये वाली और ये वाली दोनों ऑलमोस्ट सेम है, कोई इनमें कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। x प्लस एक्स बार अगर मैं लिखूं या ना लिखूं, तो मैंने यहाँ क्या x प्लस एक्स बार लिखा है ताकि मैं इसको आराम से सॉल्व कर पाऊं। सो व्हाट वी विल डू, अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड। ये वाई जेड को मैंने पहले x से मल्टीप्लाई किया और फिर x बार से, राइट। अब यहाँ पे मेरा एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, इन दोनों में से मैं एक्स वाई कॉमन ले लेती हूँ फर्स्ट और थर्ड टर्म में से। सो इट विल बी एक्स वाई 1 प्लस जेड, और इन दोनों टर्म में से मेरा एक्स बार जेड कॉमन आ सकता है, ये एक्स बार जेड है, यहाँ पे भी एक्स बार जेड है। अगर मैं एक्स बार जेड कॉमन लूँ तो मेरा आ जाएगा 1 प्लस वाई। मतलब दिस आई हैव डन जस्ट फॉर डूइंग, ताकि मैं सोल्यूशन इजीली कर पाऊं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक टर्म ऐड करने से मेरी बाकी टर्म भी सॉल्व होने यहाँ पे लग गई हैं। तो टर्म हमने x प्लस एक्स बार ऐड कहाँ किया है, वाई जेड के साथ, जिसके पास x नहीं था उसके पास। जैसे अगर मुझे यहाँ अगर कोई टर्म ऐड करनी पड़ेगी तो मैं यहाँ z ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि x y है। यहाँ अगर कोई टर्म मुझे ऐड करनी पड़ेगी तो y ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने सोल्यूशन के लिए यहाँ पे फर्स्ट मैंने टर्म को ऐड करके देखा है कि मेरा सॉल्व हो रहा है, तो अब ये हो रहा है, इसलिए फिर हम इसको वैल्यू डाल देंगे। वी नो 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 1 बाय बुलियन लॉ, एंड 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यानी कि इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ मेरा क्या बच जाएगा, एक्स वाई 1 प्लस एक्स बार जेड 1 से मल्टीप्लीकेशन मीन्स इट विल रिमेन एक्स वाई एज इट इज एंड एक्स बार जेड, राइट। तो हमें यही प्रूव करना था, राइट हैंड साइड पे हमारी जो वैल्यू थी एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड, तो यहाँ पे हमारा क्या है एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड। तो दिस वे वी हैव सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। अगर कई बार प्रॉब्लम में कह देता है कि इसका आप सॉल्व करके सर्किट भी बनाओ, तो आप यहाँ पे सर्किट तो इजीली आप कोई भी लॉजिक सर्किट बना सकते हो। जैसे मान लो आपके पास एक्स वाई और जेड 3 इनपुट हैं, राइट। तो एक्स और वाई पे यहाँ बीच में आपका कौन सा गेट लगा है, एंड गेट, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स बार जेड, एक्स मैंने यहाँ से लिया, इसको बार बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया हमारा एक्स बार, और दूसरा मैंने लिया जेड, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी हमारा एंड गेट है, और अगर हमने यहाँ पे इन दोनों के बीच में फिर प्लस है तो हमारा और गेट लगेगा। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन आ गई एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड। तो दिस वे वी कैन सॉल्व एनी बुलियन अलजेब्रा, और हम अपना सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। कई बार वो प्रूव करने को कहेगा, कई बार लॉजिक सर्किट को रिड्यूस करने को कहेगा, तो जो भी हमारी इक्वेशन है उसको हम रिड्यूस करके छोटा सर्किट हम उसका बना पाएंगे। दिस वे वी विल डू, राइट। एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई बार जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड। सपोज हमें इस बुलियन एक्सप्रेशन को प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल, राइट। तो बड़ी वाली इसमें हमारे पास 3 टर्म्स, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई बार जेड। अब इनमें से हमें कॉमन देखना है क्या लें और हमारा कुछ सॉल्व हो जाए। अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो मेरा जेड कॉमन आ रहा है, सो आई विल राइट हियर जेड कॉमन